کر رہے ہیں کہ میٹرک کے بعد انٹر کی کتابیں بھی لیٹ 11ویں اور 12ویں جماعت کے درس کتب کی ایلوکیشن میں تاخیر بر وقت ایلوکیشن نہ ہونے سے کتابوں کی چھپائی تاحال شروع نہ ہو سکی۔ پیپٹا حکام کے مطابق ابھی انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کا آغاز نہیں ہوا۔ کلاسز شروع ہونے سے قبل انٹر کی درس کتب مارکیٹ میں فراہم کر دی جائیں گی۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیپٹا حکام کے مطابق ابھی انٹرمیڈیٹ کی کلاسز کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ گرام فروشی نے عوام کا پیچھا نہ چھوڑا۔ برائلر گوشت 7 روپے مہنگا، فی کلو قیمت 540 روپے۔ مارکیٹ میں صافی گوشت 640 روپے۔ پھل اور سبزیاں سرکاری نرخناموں کے برعکس مہنگے داموں فروخت۔ پیاز 90، لہسن 620، ادرک 440 روپے کلو فروخت۔ سیب 540، امرود 280، آڑو 380، تربوز 90 روپے فی کلو میں دستیاب۔ مزید تفصیلات جانیں گے عبدالقادر سے۔ جی عبدالقادر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آج بالکل جو مارکیٹ کمیٹی کی جانب سے سرکاری نرخنامے جاری کیے گئے ہیں سبزیوں، پھلوں اور پولٹری مصنوعات کے، تو پولٹری مصنوعات کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آج بھی اگر برائلر کی قیمت کے حوالے سے بات کی جائے تو 7 روپے اضافے کے بعد 540 روپے فی کلو سرکاری ریلیز میں قیمت مقرر کی گئی ہے۔ تاہم مارکیٹ میں جو صافی برائلر گوشت ہے وہ 620 سے 640 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح سبزیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو آج جو ریلیز جاری کی گئی اس میں پیاز 60 روپے مقرر کیا گیا۔ مارکیٹ میں درجہ اول کا معیاری پیاز جو ہے 80 سے 90 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے، اور بعض مقامات پر معیاری پیاز جو ہے 100 روپے فی کلو تک بھی فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح ٹماٹر 30 کے برعکس 60 روپے فی کلو تک فروخت ہو رہا ہے۔ لہسن 510 روپے فی کلو ہے، مارکیٹ میں 620 روپے فی کلو تک فروخت کیا جا رہا ہے۔ ادرک 285 روپے فی کلو سرکاری ریلیز میں، مارکیٹ میں 420 سے 440 روپے فی کلو تک جو ادرک ہے وہ فروخت ہو رہا ہے۔ اور اسی طرح موسمی سبزیاں جو ہیں وہ مہنگے داموں فروخت کی جا رہی ہیں۔ پھلوں کی صورتحال بھی یہی ہے کہ سیب، کیلا، امرود اور موسمی پھل جو ہیں وہ سرکاری نرخناموں کے برعکس مارکیٹوں میں مہنگے داموں فروخت کیے جا رہے ہیں۔ درجہ بندی کے حساب سے قیمتیں وصول کی جا رہی ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک صارف موجود ہیں جو خریداری کے لیے آئے، ان سے بات کرتے ہیں۔ جی بتائیے گا کہ کیا صورتحال دیکھ رہے ہیں مارکیٹ میں سبزیوں، پھلوں، برائلر؟ یہ پٹرول بڑھنے سے تقریباً چیزیں سب بڑھ گئی ہیں، تو قیمتیں بھی آسمان پر چلی گئی ہیں اور کاروبار اوپر سے ہے نہیں۔ تو برائلر کا ریٹ دیکھیں 500 ہے صافی، تو وہ 600 650 روپے ریٹ دے رہے ہیں۔ تو یہ ہے سبزی ہیں من پسند ریٹ ہے، تو پوچھنے والا اصل میں کوئی نہیں ہے، کہ پوچھے تو صحیح، آ کے پوچھ کے تو وہ چلے جاتے ہیں۔ تو من پسند کے ریٹ ہیں انہوں کے۔ صارف کی گفتگو سنی، ان کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور جو ریل لسٹیں ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ ہر علاقے کا ریٹ الگ ہے، ہر دکان کا ریٹ الگ ہے۔ سبزیاں ہوں، پھل ہوں، پولٹری مصنوعات یا دیگر اشیاء خورونوش ہوں، قیمتیں جو ہیں من پسند وصول کی جا رہی ہیں یا خود ساختہ قیمتیں جو ہیں وہ چارج کی جا رہی ہیں شہریوں سے، اور یہی وجہ ہے کہ شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ مہنگائی جو ہے مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ قیمتیں جو ریل لسٹ میں بڑھ رہی ہیں اس کے ساتھ ساتھ جو منڈی اور دکانوں پر قیمتیں ہیں وہ کچھ اور ہیں، جس کی وجہ سے شہری مجبور ہے کہ مہنگی اشیاء خریدیں۔ جی آپ کا شکریہ عبدالقادر۔ اب آپ کو بتائیں کہ پنجاب حکومت کا متروکہ املاک میں سالوں سے زیر التواء املاک کے مقدمات فوری نمٹانے کا فیصلہ۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی سے مسودہ قانون ترمیم تنسیخ قوانین برائے متروکہ املاک اور بے گھر افراد 2026 کثرت رائے سے منظور۔ متن کے مطابق زیر التواء کارروائی فوری نمٹانے کے لیے فل بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ فل بورڈ تشکیل دیا جائے گا، اس بارے آپ کو اپڈیٹ کریں۔ زیر التواء کارروائی کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے۔ پنجاب اسمبلی کا اجلاس متروکہ املاک میں سالوں سے زیر التواء املاک کے مقدمات فوری نمٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے اور فل بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ متن کے مطابق عدالت یا کوئی اتھارٹی فل بورڈ کے فیصلوں پر احکامات جاری نہیں کر سکے گی۔ زیر التواء کارروائی فوری نمٹانے کے لیے فل بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ اہم فیصلہ ہے متروکہ املاک میں سالوں سے زیر التواء مقدمات فوری نمٹانے کا حکم فل بورڈ کو تشکیل دیا جائے گا۔ متن میں یہ کہا گیا ہے اور احکامات جاری نہیں کر سکتی کوئی اتھارٹی فل بورڈ کے خلاف، اور زیر التواء کارروائی فوری نمٹانے کے لیے فل بورڈ تشکیل دیا جائے گا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پنجاب حکومت کا متروکہ املاک میں سالوں سے زیر التواء املاک کے مقدمات فوری نمٹانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی سے مسودہ قانون ترمیم تنسیخ قوانین برائے متروکہ املاک اور بے گھر افراد 2026 کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانیں گے حمزہ خورشید سے۔ جی حمزہ، آگاہ کیجیے گا۔ ہاں جی بالکل، پنجاب اسمبلی میں گزشتہ روز بل منظور کیا گیا ہے اور پنجاب حکومت نے متروکہ املاک میں جو زیر التواء املاک کے مقدمات ہیں ان کو نمٹانے کا فوری طور پر فیصلہ کیا ہے، جبکہ گزشتہ روز پنجاب اسمبلی سے مسودہ قانون ترمیم تنسیخ قوانین برائے متروکہ املاک اور بے گھر افراد 2026 کثرت رائے سے منظور کیا گیا ہے، جبکہ ایکٹ کے تحت مسودہ قانون تنسیخ قوانین برائے متروکہ املاک اور بے گھر افراد 1975 میں ترامیم کی جائیں گی، جبکہ ترمیم مسودہ قانون کے تحت متروکہ املاک کے زیر التواء کارروائی فوری نمٹانے کے لیے فل بورڈ
फुल बोर्ड तश्कील दिया जाएगा, जबकि मतन के मुताबिक कोई अदालत या कोई अथॉरिटी फुल बोर्ड के फैसलों पर अहकाम जारी नहीं कर सकेगी, जबकि हुकूमत पंजाब बोर्ड के मेंबरान तैनात करेगी। जबकि 1975 के तनसीख शुदा एक्ट के बायस ज़ेर अल्तवा कार्रवाई कौन सी होगी ये निगरान तय करेंगे, जबकि निगरान लाहौर हाई कोर्ट का जज होगा जिसे चीफ जस्टिस की इजाज़त से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू तैनात करेगा, जो कि फुल बोर्ड की अक्सरियती फैसले को फैसला माना जाएगा। फुल बोर्ड ज़ेर अल्तवा कार्रवाई 90 दिन में निपटाने की पाबंद होगी, जबकि फुल बोर्ड के फैसले पर 1 साल में अमल दरामद लाजिम होगा। मुद्दई को समात का हक हासिल होगा, जबकि बगैर सुनवाई कोई फैसला नहीं किया जाएगा। जबकि मतन के मुताबिक समात के लिए फुल बोर्ड के पास सिविल अदालत जैसे इख्तियारात होंगे। भलाई के लिए किए गए फैसले पर फुल बोर्ड या हुकूमत के खिलाफ लीगल कार्रवाई नहीं हो सकेगी, जबकि फुल बोर्ड में होने वाली समात को अदालती कार्रवाई समझा जाएगा। जबकि सिविल अदालत को फुल बोर्ड के फैसलों पर कार्रवाई का इख्तियार नहीं होगा। तरमीमी मसवदा कानून की हतमी मंजूरी गवर्नर पंजाब देंगे, जबकि ये बिल गुज़िश्ता रोज पंजाब असम्बली से कस्तरज़ राय से मंजूर किया गया है और इसके तहत जो मतरूका इमलाक के ज़ेर अल्तवा मुकदमात हैं इमलाक के बारे में, उसको फौरी जो है वो निपटाया जाएगा। जी हमजा खुर्शीद, बहुत शुक्रिया आपका। बेकारी माफिया के खिलाफ अब क्रैकडाउन बाकायदा प्लानिंग के साथ किया जा रहा है। नादरा से बेकारी माफिया का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। CTO लाहौर अब्दुल रहीम शरासी की लाहौर न्यूज़ से खसूसी गुफ्तगू। मजीद कहा कि अब बेकारियों के सरगना के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई होगी। मुदस्सिर हुसैन से इस बारे मजीद जानेंगे, बताइए मुदस्सिर। जी बिल्कुल, बकारी माफिया जो है वो लाहौर के लिए दर्द सर बन गए हैं। हर सिग्नल पर जो है वो बकारी माफिया जो है पाया जाता है। CTO लाहौर बकारी माफिया के खिलाफ क्या इक़दाम करने जा रहे हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। जिससे बताइएगा बकारी माफिया के खिलाफ क्या जो है वो क्रैकडाउन करेंगे, अब तक क्या हिकमत अमली होगी आपकी? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा पर्टिनेंट सवाल किया। ये पूरे लाहौर का एक बड़ा एक इशू है जिसके बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं। तो हम ये बेकारी माफिया के खिलाफ हमारा एक प्रॉपर एंटी बेगरी स्क्वाड है जो कि इसके ऊपर मुख्तलिफ काम करता है। एक तो इन्फोर्समेंट का काम करता है, जहाँ पर जो गदागर हैं उनको पिक करते हैं और उनको बहुत से रिहेबिलिटेशन सेंटर जो सरकार के हैं, छोटे बच्चे हैं तो उनको चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में और मुख्तलिफ पनाह गाँव में हम उनको जाके भर्ती कराते हैं। उसके अलावा कल हमने चेयरमैन साहब नादरा से रिक्वेस्ट की और उन्होंने हमें एक इंटरफेस दे दिया है कि बहुत सारे जो भिखारी आते हैं उनको हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते, उनके पास अपने शनाख्ती कार्ड नहीं होते, अगर होते भी तो हमें बताते नहीं। सोशल अवेयरनेस एंटी बेगरी के ऊपर, स्मोक इमिटिंग व्हीकल्स के ऊपर, सीट बेल्ट पहनने के ऊपर, हेलमेट पहनने के ऊपर, लेन लाइन वायलेशन की पासदारी करने के ऊपर। तो ये बहुत सारा हम काम करेंगे जो कि आप लोगों के तवज्जुह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया के और साथ उनके, ताकि हमारा पैगाम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जाए। और जो एंटी बेगरी जिस पे आपने बात की, इसमें एक तो हमारा है कि हम गवर्नमेंट के साथ मिलके जो अलाइड डिपार्टमेंट, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो है, उनके साथ मिलके हम इनको रिहेबिलिटेट भी करें और जो बहुत हैबिचुअल बेगर्स हैं उनको जो कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक उनके खिलाफ जो प्रोसीडिंग है वो हम कर सकें। तो हम सिर्फ फ्रंट पे जो लोग भीख मांग रहे हैं इनके पीछे जो वो हैं वो भी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से मिल के DIG ऑपरेशन के साथ हमारी बात हुई बड़ी मुफस्सल, और उस पर हम एक बरबूत प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम इनके जो पीछे इनके हैंडलर्स हैं उनको भी पकड़ा जाए और उनको प्रॉपरली उस माफिए को बिल्कुल आईनी हाथों से लिया जाए और उनके खिलाफ सख्त से सख्त जो कार्रवाई जो है कानून के मुताबिक। जी बिल्कुल, ये थे CTO लाहौर अब्दुल रहीम शराजी जो कि बता रहे थे कि बकारी माफिया के ख़िलाफ़ अब मनज़्ज़म जो है वो कार्रवाइयाँ होंगी, उनके खिलाफ जो है बाकायदा मुकदमा दर्ज करके उनको हवालात में बंद किया जाएगा ताकि जो बकारी माफिया है वो दोबारा सर ना उठा सके। जी बहुत शुक्रिया आपका। इदारों को खुद मुख्तार बनाने के लिए अवाम पर मजीद बोझ डालने का प्लान। पंजाब हुकूमत ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा को फंड इकट्ठे करने का इख्तियार दे दिया। पंजाब असम्बली से मंजूरी के बाद अब फाटा रेवेन्यू कलेक्शन का मॉडल तैयार करेगा। ऑर्डिनेंस में तरमीम के तहत एजेंसी के पास फंड जमा करने का इख्तियार होगा। मजीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, आगाह कीजिएगा। जैन अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। जैन से इस बारे अपडेट लेंगे। आपको बता रहे हैं इदारों को खुद मुख्तार बनाने के लिए आवाम पर मज़ीद बोझ डालने का यह फैसला है। अब फाटा भी आवाम से पैसे इकट्ठे कर सकेगा, आवाम पर मज़ीद बोझ डाल दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फाटा को फ़ंड इकट्ठा करने का इख्तियार दे दिया है और इस बारे अब फाटा ये प्लानिंग करेगा कि आवाम से पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं और इस हवाले से पंजाब असम्बली की मंजूरी के बाद अब उन्हें ये इख्तियार दे दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि इदारों को खुद मुख्तार बनाने के लिए आवाम पर मज़ीद बोझ डालने का प्लान
पंजाब हुकूमत ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा को फंड इकट्ठा करने का इख्तियार दे दिया है। मजीद इस प्लान के बारे में जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। इदारों की माली खुद मुख्तारी के नाम पर एक और अहम कदम उठा लिया गया है। पंजाब हुकूमत ने पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी फाटा को अपने वसाइल खुद पैदा करने का इख्तियार दे दिया है, जिसके बाद इदारा बाकायदा रेवेन्यू कलेक्शन का निज़ाम तश्कील देगा। पंजाब असम्बली से मंजूर होने वाले हालिया कानून साजी के तहत पंजाब हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एजेंसी ऑर्डिनेंस 2002 के सेक्शन 19 में ये अहम तरमीम की गई है, जिनके जरिए इदारे को फीसें, रेट्स और दीगर चार्जेस आयद करके फंड्स इकट्ठे करने की इजाज़त दे दी गई है। इससे कबल फाटा को किसी भी किस्म की फीस या चार्जेस के नफाज के लिए हुकूमती पेशगी मंजूरी दरकार होती थी। ताहम नई तरमीम के बाद इस अमल को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल हो गया है। ज़राए के मुताबिक फाटा अपनी मुख्तलिफ हाउसिंग स्कीमों में रिहायशियों और प्लॉट होल्डर्स पर मुख्तलिफ मद में फीसें और टैक्सेस आयद कर सकेगा, जिनका मकसद तरक्याती अखराजात पूरे करना और मनसूबों को माली तौर पर खुद कफील बनाना है। हुकूमती मौक़िफ़ के मुताबिक ये इक़दाम शहरी और देही तरक्याती मनसूबों की बर वक्त तकमील और माली इस्तेहकाम के लिए नागुज़ीर है। ताहम इस अहम पेशरफ्त के साथ ही खदशात भी जन्म ले रहे हैं कि इदारों को खुद मुख्तार बनाने की पॉलिसी अवाम पर इजाफी माली बोझ डालेगी। नई कानून साजी के बाद अब तमाम नजरें फाटा की जानिब से तैयार किए जाने वाले रेवेन्यू कलेक्शन मॉडल पर मरकूज हैं, जो ये तय करेगा कि माली खुद मुख्तारी का ये इक़दाम तरक्की का जरिया बनता है या अवामी मुश्किलात में इजाफा करता है। आपका शुक्रिया ज़ैन। IG पंजाब राव अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन फैमिलीज के मसाइल सुने, फौरी रिलीफ के लिए अहकामात भी जारी किए। कांस्टेबल नासिर अब्बास की प्रमोशन की दरख्वास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को ज़ेर गौर लाने की हिदायत दी गई। तफसीलात के लिए बात करेंगे मुदस्सिर हुसैन से। मुदस्सिर, बताइए। बिल्कुल, सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब अब्दुल करीम की पुलिस मुलाजमीन और उनके अहल खाना से मुलाकात हुई। IG पंजाब ने पुलिस मुलाजमीन और फैमिली के मसाइल सुने और फौरी रिलीफ के लिए अहकाम जारी किए। सब इंस्पेक्टर नदीम साबित के बेटे के इलाज और मर्जी के लिए माली इमदाद की दरखास्त पर एडिशनल IG वेलफेयर एंड फाइनेंस रिलीफ के बारे में हुक्म दिया। इसके अलावा रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अशरफ की कानूनी कार्रवाई से मुतल्लक के दरखास्त पर DIG स्टेशन लाहौर को जरूरी कार्रवाई की IG पंजाब ने हिदायत जारी की। कांस्टेबल नासिर अब्बास की तरक्की की दरखास्त पर DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को जो है वो रिलीफ के बारे में हुक्म दिया। इसके अलावा इंस्पेक्टर आसिफ सजाद के बेटे के इलाज मार्जी के लिए माली इमदाद की दरखास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को हुक्म दिया। मरहूम इंस्पेक्टर आसिफ हमीद की वालदा के बेटे की भर्ती और माली इमदाद की दरखास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को रिलीफ के बारे में IG पंजाब ने अहकाम जारी किए। मरहूम ASI सफदर अली के बेटे की भर्ती की दरखास्त पर DIG वेलफेयर एंड फाइनेंस को जो है वो जारी की कि उनको रिलीफ फराहम किया जाए। IG पंजाब अब्दुल करीम ने एडमिन डिसिप्लिन प्रमोशन वेलफेयर से मुतल्लिक दीगर दरखास्त पर भी अहकाम जारी किया और ये हुक्म दिया कि जो मुलाजमीन हैं इनके मसाइल जो है वो हल किए जाएंगे। जी मुदस्सिर हुसैन, बहुत शुक्रिया आपका। ट्रेन शेड्यूल बदस्तूर मुतासिर है। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें घंटों लेट। कराची से आने वाली लामा इकबाल एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट लेट। जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे 10 मिनट ताख़ीर का शिकार हुई। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद क्या तफसीलात जाने के फ़हद अमीन से। जी फ़हद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, रेलवे इंतजामिया के मुतअद्दिद दावों के बावजूद ट्रेनों का शेड्यूल मामूल पर नहीं आ सका। ट्रेन शेड्यूल जो है वो बदस्तूर मुतासिर है। कराची और कोयटा समेत मुख्तलिफ शहरों से आने वाली ट्रेनें आज भी घंटों ताख़ीर का शिकार है। कराची से आने वाली लामा इकबाल एक्सप्रेस 4 घंटे 30 मिनट और जाफर एक्सप्रेस 4 घंटे 10 मिनट की गैर मामूली ताख़ीर का शिकार है। मिल्लत एक्सप्रेस 3 घंटे 30 मिनट, खैबर मेल एक्सप्रेस 3 घंटे 25 मिनट और ग्रीन लाइन एक्सप्रेस 2 घंटे 55 मिनट की ताख़ीर का शिकार है। तेजगाम एक्सप्रेस 2 घंटे 45 मिनट, कराची एक्सप्रेस 2 घंटे 20 मिनट और कराक्रम एक्सप्रेस 1 घंटा 30 मिनट लेट है, जबकि अवाम एक्सप्रेस 1 घंटा 20 मिनट ताख़ीर से आ रही है। ट्रेनें लेट होने से मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आपका शुक्रिया फ़हद। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से चेयरमैन पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी मुबश्शिर मजीद डोगर की मुलाकात। किसानों को दरपेश मसाइल और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद से मुतालिक तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब की चेयरमैन पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी मुबश्शिर मजीद डोगर को मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। मोहम्मद यासीन से इस बारे मजीद जानेंगे। बताइए यासीन। पंजाब सरदार सलीम हैदर
चेयरमैन पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर ने आज गवर्नर हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में किसानों को दरपेश मसाइल और गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में मुमकिन इंतखाबी इत्तेहाद से मुतल्लिक़ तबादला ख्याल भी किया गया। मुबशर मजीद डोगर ने किसानों को गंदम की मुनासिब कीमत न मिलने पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने चेयरमैन पाकिस्तान किसान लेबर पार्टी मुबशर मजीद डोगर को मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। गवर्नर पंजाब ने कहा कि किसान मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान खुशहाल और तरक्की करेगा। बिजली इस मौके पर मुबशर मजीद डोगर ने कहा कि बिजली महंगी और यूरिया की बढ़ती कीमतों की वजह से किसान परेशान हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों को सस्ती बिजली और सस्ता यूरिया देने के लिए फौरी इक़दाम करे। उन्होंने कहा कि बिजली और डीजल की बढ़ती कीमतों ने किसानों की कमर तोड़ दी है। जी बहुत शुक्रिया आपका। केस में इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने मुलजिम समर अब्बास को 2 जून को तलब कर लिया। अदालत के रूबरू झंग पुलिस ने रिपोर्ट पेश की। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने दरख्वास्त पर समाअत की है। मुलजिम को 2 जून को तलब कर लिया गया है। 35 लाख रुपए चेक डिसऑनर केस है। इंदराज मुकदमा की दरख्वास्त बारे आपको बताएं तो अदालत ने मुलजिम को 2 जून को तलब कर लिया है। मज़ीद तफसीलात जाने के मोहम्मद इशफाक से। जी इशफाक बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने जाली चेक से मुतल्लिक केस की समाअत की है और अदालत के रूबरू इस हवाले से सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट चौधरी नसीर कमो अदालत में पेश हुए हैं। दौरान समाअत वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत की जानिब से भी वकीला पेश हुए हैं। इस मौके पर अदालत के रूबरू चौधरी नसीर एडवोकेट की जानिब से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि जो मुलजिम समर अब्बास ने गवाहों की मौजूदगी में 35 लाख रुपए 3 माह के लिए उधार दिए और उसके एवज चेक जारी किया। वकील के मुताबिक मुकर्ररा मुद्दत गुजरने के बाद भी जब चेक बैंक में जमा करवाया गया तो वो डिसऑनर हो गया। ताहम चेक डिसऑनर स्लिप के बावजूद पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। दरख्वास्त में कहा गया है कि तमाम शवाहिद और मनी ट्रेल मौजूद होने के बावजूद जस्टिस ऑफ पीस यानी सेशन अदालत ने मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त मुस्तरद की, जिस पर अदालत से रजू किया गया, जिस पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक सलीम शेख ने चौधरी नसीर एडवोकेट कमोर की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर करते हुए 2 जून को पुलिस हुकाम से और दीगर से रिपोर्ट तलब कर ली। आपका शुक्रिया इशफाक। पंजाब असम्बली के 41वें इजलास की आज की नशिस्त का एजेंडा जारी। महकमा ज़राअत पूछे गए सवालात के जवाब देगा। अरकान असम्बली शेर अवर नोटिस भी पेश करेंगे। इजलास में 7 तहरीके इल्तवाई कार भी ज़ेर बहस आएंगी। अरकान असम्बली अहम नौइयत के मामलात भी उठाएंगे। हमजा खुर्शीद से इस बारे जानते हैं, बताइए हमजा। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के 41वें इजलास की आज की नशिस्त का एजेंडा जारी कर दिया गया है। इजलास में महकमा ज़राअत पूछे गए सवालात के जवाब देगा, जबकि आज पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जबकि इजलास की सदारत स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान करेंगे। जबकि इजलास में 7 तहरीके इल्तवाई कार ज़ेर बहस आएंगी। जबकि इजलास में 8 करारदादें ज़ेर बहस आएंगी। जबकि इजलास में एक निजी यूनिवर्सिटी का बिल पेश किया जाएगा। जबकि इजलास में एक सरकारी यूनिवर्सिटी का बिल पेश किया जाएगा। जबकि इजलास में एक निजी यूनिवर्सिटी का बिल मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। जबकि इजलास में अरकान असम्बली अहम नौइयत के मामलात उठाएंगे। इसके अलावा पंजाब असम्बली इजलास में अरकान असम्बली 0 आवर नोटिस भी पेश करेंगे। जबकि पंजाब असम्बली के 41वें इजलास का आज का एजेंडा है और आज बरोज मंगल निजी मेंबर डे है, इसलिए तमाम तर जो निजी मेंबरान की कार्रवाई है उसको निपटाने की कोशिश की जाएगी। जबकि पंजाब असम्बली का इजलास दोपहर 2 बजे शुरू होगा। जी बहुत शुक्रिया आपका। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी। गवर्नर पंजाब के दस्तखत की मुंतजर सूबाई मोटर गाड़ी चौथी तरमीम बिल 2021 अप्रैल को ऐवान से मंजूर हो चुका। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता मंगल तरमीमी बिल गवर्नर पंजाब को इरसाल किया गया। ताहाल तरमीमी बिल पर गवर्नर पंजाब के दस्तखत ना हो सके। गवर्नर पंजाब की हतमी तौसीक के बाद तरमीमी बिल कानून की शक्ल इख्तियार कर जाएगा। ट्रैफिक जुर्मानों में कमी। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के मुंतजिर सूबाई मोटर गाड़ी चौथी तरमीम बिल 21 अप्रैल को ऐवान से मंजूर हो चुका है। असम्बली ज़राए के मुताबिक गुज़श्ता मंगल तरमीमी बिल गवर्नर पंजाब को इरसाल किया गया था। ताहाल तरमीमी बिल पर गवर्नर पंजाब के दस्तखत न हो सके। गवर्नर पंजाब की हतमी तौसीक के बाद तरमीमी बिल बाकायदा कानून की शक्ल पाएगा। ऐवान से मंजूर होने वाली तरामीम के मुताबिक मोटरसाइकिल के चंद चालान 2000 से कम करके 1000 रुपए होंगे। मोटरसाइकिल का ज्यादा से ज्यादा चालान अब 2000 रुपए
का होगा। रिक्शे का चालान चंद खिलाफ वर्जियों पर 3000 से कम करके 1000 रुपए होगा, जबकि संगीन खिलाफ वर्जी पर 2000 रुपए जुर्माना होगा। कार और जीप का चालान चंद खिलाफ वर्जियों पर 5000 रुपए से कम करके 2000 रुपए होगा। सेक्रेटरी पार्लिमानी अमूर पंजाब असम्बली खालिद महमूद का कहना था कि असम्बली जुर्मानों का तरमीमी बिल गवर्नर पंजाब को इरसाल कर चुकी है। एजुकेशन ग्रांट्स हासिल करने के लिए मखसूस नंबर हासिल करना लाजमी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड स्कॉलरशिप पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर दी। एजुकेशन ग्रांट्स के लिए शराइत आयद कर दी गई हैं। सेल्फ एजुकेशन स्कीम 6 अप्रैल 2026 से बंद कर दी गई। सिर्फ टैलेंट स्कॉलरशिप स्कीम जारी रखने का फैसला। आतिफ परवेज से मजीद जानते हैं, बताइए आतिफ। आतिफ अगर सुन पा रहे हैं तफसीलात से आगाह कीजिए। आतिफ परवेज से भी राब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि एजुकेशन ग्रांट्स हासिल करने के लिए मखसूस नंबर हासिल करना लाजमी। पंजाब वर्कर्स वेलफेयर फंड ने स्कॉलरशिप पॉलिसी में बड़ी तब्दीली कर दी। एजुकेशन ग्रांट्स के लिए शराइत आयद कर दी गई हैं। सेल्फ एजुकेशन स्कीम 6 अप्रैल 2026 से बंद कर दी गई। सिर्फ टैलेंट स्कॉलरशिप स्कीम जारी रखने का फैसला किया गया। मज़ीद जानेंगे आतिफ परवेज से। जी आतिफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, WWF की जानिब से जो वर्कर के बच्चों को एजुकेशनल ग्रांट दी जाती थी, इस पर अब शराइत आयद कर दी गई हैं और इन शराइत के मुताबिक स्कॉलरशिप पॉलिसी में तब्दीली की गई है। एजुकेशनल ग्रांट्स के लिए जो है वो स्पाउस के लिए सेल्फ एजुकेशन स्कीम खत्म कर दी गई है। सेल्फ एजुकेशन स्कीम 6 अप्रैल 2025 से बंद कर दी गई है। सिर्फ टैलेंट स्कॉलरशिप स्कीम जारी रखने का फैसला किया गया। FSC इंटरमीडिएट के लिए कम से कम 60% नंबर हासिल करने पर ही ये एजुकेशनल ग्रांट मिलेगी। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी 60% नंबर लेने की शर्त रखी गई है। MBBS, BDS और इंजीनियरिंग के लिए 80% नंबर हासिल करेंगे तो ही वर्कर्स के बच्चों को ये स्कॉलरशिप मिलेंगी। 6 अप्रैल 2025 से पहले जमा दरख्वास्तें काबिल कबूल होंगी। नई दरख्वास्तें 6 अप्रैल के बाद काबिल कबूल नहीं की जाएंगी। नई दाखिला पॉलिसी पर सिर्फ नई पॉलिसी लागू होगी। स्कॉलरशिप मेरिट बेस्ड सिस्टम के तहत दी जाएगी। इस हवाले से वर्कर्स और जो गवर्निंग बॉडी के मेंबर हैं साथ, उन्होंने इस तरमीमी और नई पॉलिसी पर तनकीद की है और उनका कहना है कि ये काबिल कबूल नहीं है, जबकि WWF के हुकाम का कहना है कि इस पॉलिसी और एजुकेशनल ग्रांट्स के जो सारा सिस्टम है इसको शफाफियत पर जो है लाना चाह रहे हैं और इसी को देखते हुए ये पॉलिसी में तब्दीली की गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत की जानिब से सूबे के मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम में मुफ्त सफरी सहूलियात। एक माह के दौरान स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में 4 करोड़ मुसाफिरों ने सफ़र किया। 4 अप्रैल से 4 मई तक तकरीबन 4 करोड़ मुसाफिरों ने मुफ्त सफरी सहूलियात हासिल की। एक माह में ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन में 1 करोड़ से ज़ायद मुसाफिरों ने सफ़र किया। मज़ीद जानेंगे ज़ैनुल आबिदीन से। जी ज़ैन, बताइएगा। जैसे ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हुआ तो उसके बाद पंजाब हुकूमत की तरफ से सूबा भर में चलने वाली जो मास ट्रांजिट है, इलेक्ट्रिक बसें और स्पीडो बसें हैं, उसमें मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम करने का ऐलान किया। ये 4 अप्रैल से लेकर 4 मई तक जो अदादो शुमार सामने आए हैं उसके मुताबिक सूबा भर में मास ट्रांजिट, स्पीडो और इलेक्ट्रिक बसों में तकरीबन 4 करोड़ मुसाफिरों ने बिला मुआवजा सफर किया। अदादो शुमार के मुताबिक ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली सर्विस रही, जहां एक माह के दौरान 1 करोड़ से ज्यादा शहरियों ने सफर किया। लाहौर मेट्रो बस में तकरीबन 64 लाख से ज्यादा अफराद मुस्तफीद हुए, जबकि स्पीडो बसेस के जरिए लाहौर में 45 लाख से ज्यादा मुसाफिरों को मुफ्त सफरी सहूलियात फराहम की गई। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के तहत लाहौर में चलने वाली ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों में भी शहरियों का भरपूर रुझान देखने में आया, जहां 6 लाख से ज्यादा अफराद ने सफर किया। रावलपिंडी ग्रीन इलेक्ट्रिक बसों में तकरीबन 9,25,000, जबकि मेट्रो बस सर्विस से 37 लाख से ज्यादा मुसाफिर मुस्तफीद हुए। मुल्तान में मेट्रो बस के जरिए 30.5 लाख से ज्यादा शहरियों ने सफर किया, जबकि फीडर रूट्स पर तकरीबन 6.25 लाख अफराद ने इस सहूलत से फायदा उठाया। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के जेर इंतजाम मुख्तलिफ अजला में चलने वाली इलेक्ट्रिक बसों में भी 90 लाख से ज्यादा मुसाफिरों ने मुफ्त सफरी सहूलियात हासिल की। वज़ीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर खान ने 4 करोड़ शहरियों को कामयाबी से मुफ्त सफरी सहूलत फराहम करने पर इत्मीनान का इजहार करते हुए मुतलका ऑफिसर्स को हिदायत की है कि मुसाफिरों को बेहतरीन सहूलियात फराहम की जाए और शिकायत का फौरी असाला यकीनी बनाया जाए। आपका शुक्रिया ज़ैनुल आबिदीन। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ शेखुपुरा गुलरेज अरशद का तबादला। गुलरेज अरशद को डिप्टी MD शेखुपुरा वासा तैनात कर दिया गया। गुलरेज अरशद डायरेक्टर इंजीनियरिंग वासा शेखुपुरा के अहदे पर भी तैनात थे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की हिदायत पर यह नोटिफिकेशन भी जारी किया गया।
آپ کو بتا رہے ہیں کہ ایگزیکٹو انجینئر پبلک ہیلتھ شیخوپورہ گلریز ارشد کا تبادلہ کر دیا گیا. گلریز ارشد کو ڈپٹی ایم ٹی شیخوپورہ تعینات کر دیا گیا ہے. گلریز ارشد ڈائریکٹر انجینئرنگ واسطہ شیخوپورہ کے عہدے پر بھی تعینات ہے. سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر یہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا. سیکرٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی ہدایت پر نوٹیفیکیشن جاری ہے. ایگزیکٹو انجینئر پبلک ہیلتھ شیخوپورہ گلریز ارشد کا تبادلہ کر دیا گیا. عازمین حج کے لیے تربیتی سیشن کا انعقاد. صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی خصوصی شرکت. عازمین کو ویکسینیشن اور طبی احتیاطی تدابیر سے آگاہی دی گئی. صوبائی وزیر نے کہا کہ عازمین حج کو بہترین طبی سہولیات فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے. مزید جانیں گے محمد بلال سے. جی محمد بلال بتائیے گا. بلال اگر سن پا رہے ہیں تفصیلات سے آگاہ کیجیے. جی بالکل. آج صوبائی وزیر صحت خواجہ عمران نذیر کی جانب سے حج تربیتی سیشن میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی گئی. حج تربیتی سیشن میں عازمین کو ویکسینیشن اور طبی احتیاطی تدابیر سے آگاہی بھی دی گئی. اس موقع پر صوبائی وزیر خواجہ عمران نذیر کا یہ کہنا تھا کہ حج کے دوران صحت کے مسائل سے نمٹنے کے لیے پیشگی تربیت ناگزیر ہے. جبکہ خواجہ عمران نذیر کی عازمین حج کو مقدس فریضے کی ادائیگی کے لیے مبارکباد بھی دی گئی اور حج کی ادائیگی سے قبل مکمل تربیت انتہائی ضروری ہے. ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ عازمین حج کو بہترین طبی سہولیات اور رہنمائی فراہم کرنا حکومت کی اولین ترجیح ہے اور حج تربیتی سیشنز عازمین کو مناسک حج کی درست ادائیگی میں مدد دیتے ہیں. اور خواجہ عمران نذیر کی عازمین حج سے پاکستان کی سلامتی اور استحکام کی دعا کی اپیل بھی کی گئی ہے. حضور خدا کے حضور امت مسلمہ کے اتحاد اور پاکستان کی ثالثی کی کامیابی کی دعا بھی ضرور کرنے کے حوالے سے ہدایت بھی کی گئی ہے. حکومت پنجاب عازمین حج کی سیر و حفاظت کے لیے بھرپور اقدامات بھی کر رہی ہے. جی آپ کا شکریہ بلال.